12 बजे इस संगति में क्यों आए हैं। कुछ लोग बिल्कुल नए होंगे, वो अपनी प्रॉब्लम के लिए आए हैं, लेकिन कुछ लोग तो पुराने हैं और कुछ बहुत पुराने हैं, उनके बीच में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन वो भी यहाँ बीच में बैठे हैं। इसका मतलब उनके आने का कारण कोई समस्या नहीं है, कोई और है। तो आज सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ हम क्यों बैठे हैं, क्यों आए हैं। हाँ जी, कोई और? जीवन की बातें। हाँ सिस्टर तबिता। गुड। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਗੁੱਡ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਆਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਾ ਈਸ਼ਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਸੀਹ ਨਾਲ। ਮਨੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਮਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਹੈ? ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਆ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੈ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਆ ਹੁਣੇ ਭੈਣ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਡੀਪ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਾਹੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆਈ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਬੇਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਅੱਜ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ। ਪਿੱਛੇ ਨਾ 1-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸੂਈ। तो हमने सीखना किससे है। कुछ लोग सीखते हैं अपने पास्टर से, लेकिन आज हम वचन में से ये पता करेंगे कि हमें किससे सीखना है।
उसके लिए हम पहला वचन लेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार, मैथ्यू, मत्ती की अंजील 11 चैप्टर 28, 29 और 30 वचन। Book of Matthew, chapter 11, verse 28, 29 and 30. आज ढेरों लोग मसीहत में इधर उधर दौड़ रहे हैं, उसका कारण है ऐसी भेड़ें, वचन में लिखा है, जिनका कोई अयाली नहीं, और हमारा एक अच्छा अयाली है जिसका नाम यीशु है, एक अच्छा चरवाहा है। वचन कहता है हिजकेल की पुस्तक में, मैंने भेड़ों को देखा जिनका चरवाहा कोई नहीं था, इधर उधर पहाड़ों पर तितर बितर हो गई और भटक रही थी। मेरे पास कितनी भेड़ें मिलती, मेरे को भटकते हुए आती हैं, पास्टर जी चंगा चरवाहा नहीं मिला। मैं उन भेड़ों को भी सलाह देता हूं, अगर आपकी निगाह इधर लग गई ना, ये अच्छा चरवाहा है, तो भी गलत हो आप। आपका चरवाहा कोई और है, आपको सिखाने वाला भी कोई और है। हाँ जी पढ़ें। हे सब परिश्रम करने वालों हाँ, और बोझ से दबे हुए लोगों। डिप्रेशन क्या है? बोझ है। डिप्रेशन उनको होता है जिनको डॉक्टर पहले ही बोलता है तेरे दिमाग पर कोई बोझ है। और इधर एक बोल रहा है, सब मेहनत करने वाले और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, कौन आराम देगा? वचन में लिखा है, इस संसार में आराम नहीं है, शांति नहीं है, और ना संसार तुम्हें शांति दे सकता है। इस डिप्रेशन का कारण क्या होता है कि हम शांति संसार से ढूंढते हैं। हम जिसके पास शांति ढूंढने के लिए जाते हैं वो तो पहले परेशान है। जो डिप्रेशन का इलाज करते हैं ना डॉक्टर, मैंने उनको देखा है, वो खुद भी दिमाग के पूरे सुरे होते हैं। वो सच्ची बात बोल रहा हूं आपको। जो पागलों का इलाज करते हैं, डिप्रेशन वाले लोगों का इलाज करते हैं, वो खुद भी पूरे नहीं होते। वो देखने में एक अच्छा तंदुरुस्त आदमी उस डॉक्टर को देखेगा ना, तो खुद महसूस करेगा कि थोड़ा पागल है। मेरे को याद है, मेरा एक मित्र था, उनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम था, तो कभी कभी डॉक्टर के पास जाते थे तो मुझे साथ ले जाते थे। कोई साथ नहीं होता था, चलो हम चलते हैं, मैं चला जाता था उनके साथ। सीएमसी में एक 16 नंबर वार्ड है, उसको पागलों का वार्ड बोलते हैं। तो वहां एक डॉक्टर था, मेरे को नाम भूल गया उस डॉक्टर का, बहुत मशहूर डॉक्टर था सीएमसी में, वो दिमाग का। तो मैं एक दिन उसके साथ चला गया। वो ना सबसे ऊपरली मंजिल में है, 6वीं मंजिल में, सबसे ऊपर है वो। तो जब मैं वहां पहुंचा तो पैसा जमा करवाकर, पर्ची कटवाकर ऊपर जाना होता है डॉक्टर के पास। जो मेरे साथ मेरा मित्र गया ना, उसने पैसे जमा करवाई ना पर्ची कटवाई, डॉक्टर के पास पहुंच गए। तो डॉक्टर ने बोला, पर्ची नहीं कटवाया, पैसा नहीं जमा कराया। मैं कहा भूल गए। तो कहते पहले जमा करवा के आओ। तो मैंने उसको बोला भी मैं तो 6 मंजिल नीचे नहीं जाऊंगा, ना मेरे से जाया जाता है, तू जाके जमा करवाया। वो चला गया। तो उसकी बारी आ गई, डॉक्टर ने आवाज मारी, उसको बुलाया, नाम लिया उसका, अंदर गए। तो डॉक्टर ने पूछा पेशेंट कहाँ है? मैंने बोला वो तो पैसे जमा करवाने गया। डॉक्टर ने मेरे को बोला तू पागल है? मैं कहा क्यों? कहते वो नहीं आएगा, पैसे जमा करवाने थोड़ा गया, वो चला गया घर को। अभी मेरे को तो पता है ना, मेरा मित्र है, मैं उसके साथ गया, इतना पागल नहीं है वो, अभी आएगा पैसे जमा करवा के। लेकिन डॉक्टर बोला नहीं आएगा, तेरे को पता नहीं है। लेकिन 5 मिनट के बाद वो आ गया। मैंने बोला डॉक्टर साहब आ गया पेशेंट आपका, देखो इसे। तो उस डॉक्टर को एक आदत थी, वो जब भी जाता था ना, वो पहले पूछता तेरा नाम क्या है। वो नाम बताता था, हो सकता है नाम भूल जाता। फिर वो पूछता था काम क्या करते हो, वो अपना काम बताता था। फिर उसके बाद बोलता था तेरा काम में किसी के साथ झगड़ा तो नहीं कोई, हर बार पूछता था। ये 3 सवाल पहले उसने पूछने। तो मेरे को बोलता था ये मेरा डॉक्टर जो है ना पागल है। मैं इसको 100 बार बता चुका हूं ये बात, फिर आते हर बार मेरे को यही पूछेगा। तो हम पागलपन का इलाज करवाने के लिए, डिप्रेशन का इलाज करवाने के लिए डिप्रेशन ग्रस्त आदमी के पास जा रहे हैं, तो क्या वहां इलाज हो पाएगा? जो ना आदमी को शुगर हो जाती है, फिर वो शुगर वाले लोगों को दवाई बताने लग जाता है।
और कोई बीमारी हो, रीढ़ की हड्डी का कोई बीमारी, कोई ऐसा बीमारी आपको लग गया अचानक, 2 4 5 साल रहा, तो आप उसके आधे से ज्यादा डॉक्टर हो जाते। मैं सोचता हूं इसी तरह है, जब इंसान का खोपड़ा बढ़िया काम नहीं करता, फिर वो थोड़ा उसको ठीक कर लेता, फिर वो दिमाग का डॉक्टर बन जाता है। तो हमारे पास तो एक बढ़िया दिमाग का डॉक्टर है, वो बोल रहा है आप मेरे पास आओ। मेरे पास आने का मतलब ये है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इलाज होने वाला नहीं है, केवल और केवल आपको मेरे पास आना होगा। पढ़े, दोबारा शुरू करें इस वचन को, 28। हे सब परिश्रम करने वालों हम्म और बोझ से दबे हुए लोगों, हम्म मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। इस वचन को आपने ढेरों बार पढ़ा होगा। जो मसीह लोग हैं, ये बाइबल का एक महान शब्द है जिसको बहुत ज्यादा लोग पढ़ते हैं, लेकिन सीखने के बारे आज आपको एक मौका मिलेगा इसमें से। ये वचन क्या है? मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। कितने लोगों को मैं जानता हूं, ढेर सी गोलियां खाते थे डिप्रेशन की, आज एक भी नहीं खा रहे। अगर डॉक्टर से गोलियों से चंगा होना होता तो हो जाते, लेकिन इधर वाला डॉक्टर बोल रहा है मेरे पास आने की जरूरत है, मैं तुझे चंगा कर दूंगा। हम यही सीखने के लिए इधर आते हैं कि ये कैसे होता है। मेरे को याद है, मेरी पत्नी बीमार थी, बहुत ज्यादा बीमार थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। हम गए, प्रार्थना करवाया, मेरी पत्नी ठीक हो गई उसी टाइम प्रार्थना करवाते वक्त। लेकिन मेरा जो दिमाग चलना शुरू हुआ ना, ये कैसे हुआ, मैं उसी दिन के चक्कर में पड़ गया। ऐसे नहीं हो सकता, 15 मिनट में, आधे घंटे में कैसे ठीक हो गई जो 10 साल से बीमार थी। फिर मैंने उसी दिन से शुरू किया कि ये मैंने सीखना है ये कैसे हुआ। जब आप बीमार हुए, चंगे हो गए, उसके बाद समय ऐसा आ गया कि अब आपको सीखना है कि ये चंगा करने वाला कौन था और उसने कैसे आपको चंगा किया। हाँ जी, आगे पढ़ें। मेरा जुआ हम्म अपने ऊपर उठा लो हम्म और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। हालेलुया। कहां सीखना है? मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं मन का दीन और नम्र हूं। एक तो बात है कि हमारा सिखाने वाला जो है वो बहुत नम्र है, दीन है, और दूसरा वो कह रहा है आप मुझसे सीखो। जब वो ऐसा बोलता है ना प्रभु कि आप मुझसे सीखो, तो बीच वाले सब खत्म हो जाते हैं। फिर हमें प्रभु से सीखना होगा। यहां प्रभु ऐसे नहीं बोल रहा मेरे सेवकों से सीखो, आप मेरे से भी सीख सकते हैं। मेरे से सीख कर आप एक अच्छे प्रचारक बन सकते हैं, एक उपदेशक बन सकते हैं। अगर आपने यीशु मसीह से नहीं सीखा तो फिर आप ज्यादा बढ़िया कार्य नहीं करेंगे। आज बहुत से लोगों में एक समस्या है, मसीह लोगों में, कि उनका जो रोल मॉडल है वो एक पास्टर है। बहुत ज्यादा लोगों के अंदर एक समस्या है, और जब वो पास्टर में फिर कमी देखते हैं, फिर कुछ लोग तो मसीह को छोड़ देते हैं, कुछ लोग कलीसिया छोड़ देते हैं, कुछ लोग एक और पास्टर को ढूंढते हैं। कारण है कि वो गलत जगह पर है। उनका जो रोल मॉडल है वो एक इंसान है। वचन कहता है वो मुबारक है जो परमेश्वर से सीखता है, उस पर लानत है जो इंसानों से सीखता है। हालेलुया। फिर भी आप इधर सीखने के लिए मेरे पास आए हैं। मैं आपको सलाह देता हूं, मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकता हूं, लेकिन मेरे सीखने से आप कामयाब नहीं होंगे। आप हमेशा फतह का जीवन हासिल नहीं कर सकेंगे जब तक आपको मसीह नहीं सिखाएगा। इस कलीसिया में सीखने वाले कई लोगों के बारे में मुझे शिकायत आती है, पास्टर जी उनका जीवन देखो कितना घटिया है, वो आपसे सीख रहे हैं। मेरे को कंप्लेंट मिलता है, लेकिन मैं उनको क्या उत्तर दूं? मैं उत्तर दे ही नहीं सकता। मैं उनको अच्छा सिखा रहा हूं, लेकिन मैं इंसान हूं ना, मुझसे सीख रहे हैं। जब तक यीशु मसीह उन्हें नहीं सिखाएंगे तब तक वो सफल नहीं हो सकते आत्मिक जीवन में। हालेलुया। दूसरा तिमोथी 4 चैप्टर 3 और 4 वचन।
दूसरा तिमोथी चौथा चैप्टर 3 और 4 वर्ष। 2 Timothy chapter 4 verse 3 and 4। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हालेलुया। एक ऐसा समय आएगा लोग अपने कानों की खुजली को शांत करने के लिए ढेर से उपदेशक बटोर लेंगे, इकट्ठे कर लेंगे। और आज ये समस्या जो हम देख रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंडिया से पंजाब में है। आज हिंदुस्तान के पूरे पास्टर्स देख रहे हैं कि पंजाब में गड़बड़ बहुत ज्यादा है। पंजाब में झूठे नबियों का ढेर लगा पड़ा है। और जब कभी किसी विश्वासी को पूछते हैं तो वो उन्हीं नबियों का नाम लेता है, उनमें से किसी एक का, जो झूठे नबी हैं। तो इसका कारण क्या है? वचन कहता है कि ऐसा लोग क्यों करेंगे? अपने कानों की कान क्या सुनना चाहते हैं? बहुत से लोग आज मसीहत में ऐसे हैं जिनके कान यीशु नहीं सुनना चाहते, जिनके कान ढेर सी दुनियावी आशीषें सुनना चाहते हैं, जिनके कान बरकतें 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 सुनना चाहते हैं। अभी सिस्टर सत्या ने अपने बेटे की गवाही दी। इनका बेटा बहुत बुरी हालत में था, पिछले दिनों में नशा करता था, ज्यादा नशा, और घर की चीजें उठाकर बेच देता था। आज उसी बेटे की गवाही ये दे रहे थे और मुझे खुशी हुई। रात को 12, 1, 2 बजे बाइबल पढ़ता है, इसका मतलब यीशु से सीख रहा है। तो मैंने तो उसको नहीं बोला था कि तू ऐसे प्रार्थना करेगा तेरे को कार मिल जाएगी, मैंने नहीं बोला उसे। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है जब प्रार्थना करो तो विश्वास से करो, जो मांगा था वो मिल जाएगा। तो वो अपने आप ही लगा हुआ है, मेरे से उसकी कोई बात नहीं हुई है, और मैं ऐसा प्रचार भी नहीं करता, आपको पता है। लेकिन उसने क्या किया? उसने कार को हासिल कर लिया। और आज के झूठे उपदेशक क्या कहते हैं? आपको इधर आना होगा, पैसा डालना होगा, बीज बीजना होगा, फिर ये सब होगा। और झूठे उपदेशक की निशानी क्या है? ये जो दान दशमाश वाला चक्कर है ये बाद वाला है। पहले परमेश्वर को जाना है, पहले उस जगह को जानना है जिसमें आप दान दशमाश दे रहे हैं, पहले उस सिस्टम को जानना है जिसके अंदर आपका पैसा जा रहा है। उसके बाद वचन कहता जब आप आशीष पा जाओगे तो परमेश्वर का भी हिस्सा है। लेकिन आज सिस्टम उल्टा हो गया। पहले क्या हो गया? पहले बीज हो गया, दान दशमाश हो गया, और बाद में परमेश्वर की जानकारी हो गई। पता नहीं होगी या नहीं होगी। कुछ लोगों का जीवन बस बीज के आसपास ही घूम रहा है, इससे आगे और कुछ नहीं है। मेरे पास दुख मुझे तब होता है जब गरीब लोग आते, 8,000 रुपया, 7,000 रुपया, 9,000 रुपया सैलरी है, हर संडे को जलंधर जा रहे हैं और हर संडे बीज बीज रहे हैं। हालेलुया। मैंने पिछले संडे आपको बोला था कि सब प्रभु की सेवा करते हैं, लेकिन कुछ जगह पर हमारी तालीम उनसे मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम यीशु से सीखना चाहते हैं, और जो अपनी तालीम लेके घूम रहा है उसके साथ हम नहीं हैं। शायद हो सकता पिछले हफ्ते आपको लगा हो कि मैंने बाकी पास्टरों को सर्टिफिकेट दे दिया कि सब ठीक है। जो वचन के अनुसार नहीं है वो हर एक गलत है। जिस कलीसिया में सिखाने वाला परमेश्वर का वचन नहीं है वो कलीसिया भी गलत है। हालेलुया। मैं फिर भी किसी का नाम नहीं लेता, ढेरों हैं। यहां क्या लिखा है? दोबारा पढ़े से, 2 तिमोथियुस 4:3 और 4। क्योंकि ऐसा समय आएगा। ऐसा समय आएगा नहीं, आ चुका है। ये कब लिखा गया था? आज से 2000 साल पहले। उस समय ऐसा समय अभी नहीं आया था।
तो लिखा है ऐसा समय आएगा, और आज हम उस समय में बैठे हैं। हाँ जी, कैसा आएगा? जब लोग हाँ खरा उपदेश ना सह सकेंगे। हाँ, कितने लोग झूठा उपदेश सुनते हैं? हजारों। हाँ, सच कहता हूं, मुझे सब कुछ करना आता है। अगर झूठा उपदेश इधर देता ना, तो आप इधर नहीं बैठ सकते थे। अब तक कहीं और जगह लेना पड़ता, कहीं पैलेस पुलिस में। कारण क्या है? यहां लोग इतने क्यों रहते हैं? वचन क्या कह रहा है? खरे उपदेश को लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कई बार तो कई लोगों का सवाल ऐसे हो जाता है, उधर फिर इतने लोग क्यों हैं? उधर इतने लोग होने का कारण यह भी हो सकता है कि उपदेश खरा नहीं है। तो यहां तो कह रहा है कि खरा उपदेश तो लोग बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, लोग सहारेंगे नहीं उसको। एक समय ऐसा आएगा। हाँ जी, पढ़े। पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। कानों की खुजली के कारण अपने अनुसार, ये भी प्रॉब्लम है। मुझे कैसा चाहिए? आज सबके अलग अलग है ना। है? किसी का बलजिंदर, किसी का अंकन रूला, किसी का वो सिस्टर है राजपुरा में, क्या नाम उसका है, कंचन मित्तल, किसी का राणा सुखपाल राणा, किसी का औड़ में है क्या वो अमृत संधू। अपनी मर्जी के अनुसार। मेरी मर्जी का जो है वो औड़ में है, मेरी मर्जी का जो है वो चंडीगढ़ में है। अपनी मर्जी के साथ ढेर सारे उपदेशक हाँ इकट्ठे कर लेंगे। आज इकट्ठे हो गए हैं। फिर भी मेरा विषय ये नहीं आज किसी का विरोध करने का, लेकिन मैं इस विषय पर इसलिए टच कर रहा हूं क्योंकि हमारा सिखाने वाला आज और है कोई। हम किसी और से सीखने जा रहे हैं, वो पास्टर नहीं है, क्योंकि वो बोल रहा है मुझसे सीखो। आज का दिन उसने चैलेंज किया है कि आपको मेरे से सीखना होगा। हाँ जी। और अपने कान सत्य से फेर कर, सच्चाई से अपने कानों को हटा लेंगे। उसमें सच्चाई डालो ना, नहीं पड़ेगी, झूठ डालो पड़ेगा। अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। आगे पढ़े। पर तू सब बातों में सावधान रह। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? तुझे क्या करना है? आपके पास भी बहुत आते सिखाने के लिए, आपके घर में भी आएंगे, लेकिन वचन उसके लिए क्या कहता? तू सावधान रहना है, अपनी शिक्षा की रखवाली करना है। कहां तुझे सिखाया गया था? हाँ जी। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। वचन कहता है कि ये सेवक बचने वाले नहीं है जो झूठ बोल रहे हैं, इनको ज्यादा मार पड़ने वाली है। हालेलुया। और मैं सच कहता हूं, बहुत डरता हूं इससे। मुझे ये बहुत डर लगता है जब जाऊंगा वहां प्रभु बोलेगा मैं तेरे को जानता नहीं। बहुत आएंगे प्रभु प्रभु कहते। आज ढेरों उपदेशक मैं देखता हूं, बड़े और छोटे, परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, ज्ञान के बारे कुछ पता नहीं, लेकिन बहकी बातें करते हैं। एक छोटा सेवक वो भी बोलता है बाइबल मेरे पास ये सारी मैं ही जानता और कोई नहीं जानता। मरने तक भी यीशु से सीखते रहेंगे ना तो भी पूरा नहीं होगा। उसके पास इतना बड़ा ज्ञान है। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना किया था, हे मेरे पिता इन पर दया कर कि ये तेरे पुत्र को जान लें जिसे तूने इनके लिए भेजा है और जिसमें बुद्ध और ज्ञान के खजाने छुपे हुए हैं। यीशु के अंदर ज्ञान के खजाने हैं, हमें उससे सीखते ही रहना है। संत पौलुस इतनी मेहनत करने के बाद, बाइबल लिखने के बाद भी बोलता है मैंने उसे पकड़ नहीं लिया, अभी मैं दौड़ा चला जाता हूं। मैंने भी नहीं पकड़ा, मैं भी उसे और सीखता हूं और ज्यादा जानने की कोशिश करता हूं। ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं, मेरा ख्याल मसीह लोगों ने तो हजार बार इस शब्द को पढ़ लिया, आज तो इसके ऊपर ध्यान भी नहीं है। ये तो वो कंठ रचना हो गई, आपके दिमाग में चढ़ गया,
अभी तो कुछ और सीखना चाहते हैं जो सुना नहीं है। पहले इस पर तो ध्यान कीजिए, ये क्या कह रहा है यहां। आगे बढ़ने से पहले यहां रुक जाइए। यीशु बोल रहे हैं आपको मेरे से सीखना होगा। अपने आप ज्यादा उपदेशक नहीं बनना होगा, उपदेशकों को ज्यादा मार पड़ेगी। मैं सच कहता हूं, जिस दिन न्याय के सामने आप खड़े होंगे, आप इतनी टाइट पोजीशन से नहीं निकलेंगे जहां से मैं निकलूंगा। मेरा हिसाब ज्यादा होगा और मेरे को मार भी ज्यादा पड़ेगी अगर मैं गलत हूं तो। पढ़ें याकूब की पत्री 3:1। Book of James, chapter 3, verse 1. हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हालेलुया। उपदेशकों को क्या होगा? और भी ज्यादा दोषी ठहरेंगे। मुझे सबसे दुख उस समय लगता है जब यीशु मसीह से नहीं सीखे हुए लोग, यीशु मसीह से ज्ञान ना पाए हुए लोग ज्ञान को सिखाने के लिए निकलते हैं। संत पौलुस तिमोथियस को कहते हैं कि जब तक एक चेला पूरी तरह तैयार ना हो जाए, उसको सेवकाई के लिए हाथ रख के मत निकालना, जब तक वो लोगों की बातों का जवाब देने के योग्य ना हो जाए। वचन कहता है अंत के दिनों में लोग भक्ति को कमाई का कारण बना लेंगे। पंजाबी में लिखा खट्टी दा वसीला। पिछले दिनों में देवेंद्र ने बच्चों को बोला मोबाइल छोड़ दो, कम देखो। कुछ बच्चों ने कम देखना शुरू कर दिया, कुछ थोड़े दिन छोड़ दिया, 15-20 दिन। क्या देवेंद्र के सिखाने से आप छोड़ दोगे? मैं नहीं मानता छोड़ दोगे। अभी 3 महीने को मत बोल मोबाइल के बारे में, ये सब तेरे को फिर वहीं दिखाऊंगा। हालेलुया। इनको मोबाइल छोड़ने के लिए यीशु से सीखना होगा। जब यीशु इन्हें बताएगा ना तुम्हारा शरीर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये तब समझ पाएंगे। हम सब इंसान हैं, हमारे अंदर भी आप जैसी गलतियां हैं। हो सकता है देवेंद्र ने आप भी पूरी तरह ना छोड़ा हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। हमें सेवकों को भी और विश्वासियों को भी सीखने के लिए मसीह के पास जाना होगा, और यह भी सीखना होगा कि उपदेशक को मार ज्यादा पड़ेगी अगर वो गलती उसमें पाई गई तो। जिस बात के लिए मैं सिखा रहा हूं, अगर वो गलती मेरे अंदर है तो आपसे ज्यादा मार मुझे पड़ेगी। सीधा सोच लो कारण क्या है। आप तो सीख रहे हैं, आप में वो हो सकती है, मैं सिखा रहा हूं मेरे में होनी चाहिए ही नहीं। अगर मेरे में भी पाई जाती है तो फिर पहले शुरुआत लिखा यहां से होगी। हालेलुया। इसके लिए हम दोनों को, सेवक और विश्वासी, सीखने के लिए मत्ती 11:29 में जाना होगा। मुझसे सीखो मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। हालेलुया। मुझसे सीखो क्योंकि मैं, आज सेवक हैं ढेर सी किताबें पढ़ के यूट्यूब से तैयार करके वचन चेपते जा रहे हैं। ज्यादा सेवक यीशु मसीह भी सिखाते हैं और मैं इस बात का जिंदा गवाह हूं। जिस दिन मैं आपको वचन वो सुनाता हूं जो यीशु मसीह ने सिखाया था, वो बहुत बढ़िया होता है आपके आत्मिक जीवन के लिए और मेरे आत्मिक जीवन के लिए भी। लेकिन जिस दिन मैं अपनी समझ से तैयार करके आता हूं, इतना बढ़िया नहीं होता, उसका आपके ऊपर असर नहीं होता। शुक्रवार को
मैं 4 बजे सुबह जाग गया। मैं इतनी सुबह नहीं जागता, लेकिन पता नहीं मेरी पूरी नींद खुल गई 4 बजे, और 4 बजे मेरे दिमाग में वचन घूमने लगे। ये वचन सारा जो आपको सुना रहा हूं, ये शुक्रवार सुबह 4 बजे का है। 5 बजे मुझे किसी ने अंदर से उकसाना शुरू किया, इसे लिख। लेकिन ठंडी बहुत थी, रजाई थी ऊपर, मेरा दिल नहीं करता था उठने को, लेकिन बार बार मुझको अंदर से उकसाहट हो रही, लिख ले, भूल जाएगा आधे घंटे घंटे तक, अभी फिर सोएगा, फिर याद नहीं रहेगा क्या हुआ था। तो मैं उठा, उठ के लिखना शुरू किया इस वचन को। 5 बजे से लेकर 6 बजे तक 1 घंटा लिखा, कंप्लीट हो गया। तो जब मैंने शुरू किया, मैं हैरान रह गया, कहां से लिखना शुरू किया, हे थके हुए, और ये तो वचन रोज पढ़ता हूं मैं। जब प्रभु आपसे बात करेंगे, आप रोज पढ़ते हो लेकिन आपको समझ नहीं है उसकी, यही वो सिखाना चाहता है। आज मसीहत के अंदर ये प्रॉब्लम है कि हम पढ़ पढ़ कर आगे जाते जा रहे हैं। आज मसीहत में विश्वासी ढूंढ रहे हैं, को गहरा सा शब्द निकाल के लेके आओ। एक हमारी बहन है, वो एक सेवक को उसने बोला, कोई गहरा सा वचन सुना। अभी एबीसी तो सीख लो पहले। यही मसीह है जिसके अंदर ज्ञान के खजाने छुपे हुए। हालेलुया। हमारा टीचर जो है वो क्या बोल रहा है, मैं क्या हूं? पढ़े, क्या क्या हूं मैं? हालेलुया। एक ये समस्या है, हमारे टीचर के अंदर एक कमी है, मुझे प्रभु माफ कर दे ऐसा बोलने के लिए। उसके पास डंडा नहीं है, ये समस्या है। जब हम पढ़ते थे ना छोटे, जब मैं छोटा था पढ़ता था, वही सब्जेक्ट में हम कामयाब हुए जिस टीचर के हाथ में डंडा था। जिस टीचर के हाथ में डंडा नहीं था, उस सब्जेक्ट में हम कमजोर थे। कभी होमवर्क नहीं करके लेके जाना, कभी टीचर की बात नहीं सुननी, मारेगा तो है नहीं। वो टीचर चाहे ना ही मारे, उसके हाथ में डंडा, हम उसका होमवर्क करके जाते थे, सुबेरे मारेगा वो। इधर हमारा टीचर कुछ और बोल रहा है। यही एक समस्या है कि मैं क्या हूं। उधर तो बोल रहा है मेरे से सीख लो, और इधर बोल रहा है, अगला वर्ल्ड ही बोल रहा है साथ ही, ज्यादा दूर नहीं, कि मेरे से सीखने के लिए आओ क्योंकि मैं मन का। तो फिर कौन सीखेगा इससे? यही प्रॉब्लम है, आज सेवक इसीलिए नहीं सीख रहे। यीशु से सीखने की कमी यही है कि उसके हाथ में डंडा नहीं है। वो परमेश्वर था ना, जब पहाड़ जल उठा था जिसके ऊपर उतरा था, वो ठीक था। हाँ, डरते और कांपते हुए उसके पास जाते थे। हमें ऐसा ही परमेश्वर चाहिए। अगर यही बातें मसीह हाथ में डंडा लेकर सिखाता तो शायद हम आसानी से सीख जाते। वचन में लिखा है कि ताबड़तोड़ बदी की सजा जल्दी ना मिलने की वजह से मनुष्य जाति पाप की ओर बढ़ती जाती है। हालेलुया। तो आज हम ये भी सीखेंगे कि हमारा टीचर ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं मन का हलीम हूं। इसके बोलने का भी कारण है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। जो लोग पिछले 15 साल से मसीह में चल रहे हैं या 20 साल से चल रहे हैं, आपकी जिंदगी में अप डाउन भी आए, आपने झेल लिए, आपने मसीह को नहीं छोड़ा। आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आई, आपने वो भी झेल लिया, आपने मसीह को नहीं छोड़ा। तो आज आपका इरादा कुछ और है, इसलिए मसीह के साथ खड़े हो। आपका इरादा ये है कि बाकी बचे हुए जिंदगी के साल हमने मसीह के साथ बिताने हैं, और उसके बाद कहां जाना है? स्वर्ग में जाना है। एक लालच है, मेरे अंदर भी है, वो आपके अंदर भी है। तो प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बढ़िया फार्मूला दे रहे हैं स्वर्ग जाने का, कि आप स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन एक ही काम करना होगा। टीचर का स्वभाव स्टूडेंट में आना चाहिए, यह जरूरी है। मैं हमेशा सिखाता हूं, अगर ये निकम्मा है ना, अगर नरक में गया तो तैयारी रखो, सब नरक में जाओगे। कोई अचानक बच गया तो बात अलग है, नहीं तो ज्यादा तैयारी रखो नरक में जाने की। अगर ये स्वर्ग में गया तो बहुत से लोगों को स्वर्ग लेके जाएगा। और संत पौलुस लिखते हैं, तुम मेरी रीस करो क्योंकि मैं मसीह की रीस करता हूं। एक अच्छा सेवक जो है
वो इसीलिए आपको मॉडल करके दिया जाता है कि आप पहले सेवक को देखते हैं। हालेलुया। तो आज भी हम इस वचन को सीखने के लिए जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे टीचर भी हैं, हमें सिखा भी रहे हैं, और एक पहली अपनी क्वालिटी ये बता रहे हैं कि आपको मुझसे सीखना होगा क्योंकि मैं एक नम्र मन का और दीन इंसान हूं, इसलिए आप मुझसे सीखो। तो हमें सबसे पहले क्या होना होगा? हमारे टीचर का स्वभाव हमारे बीच में आना चाहिए। और आप बाहर जाके देखो संगतियों में, हर एक पास्टर का स्वभाव उसकी कलीसिया के अंदर है। हाँ जी, हाँ हाँ, एक कल वीडियो कहीं ने देखी होगी, एक पास्टर का स्वभाव है ना। किन लोगों ने देखा था? हाथ ऊंचा करो। हाँ, ऐसा स्वभाव रखने वाले टीचर क्या सिखाएंगे आपको? क्या सीखोगे उनसे तुम? लेकिन ढेरों लोग जा रहे हैं सीखने के लिए, नहीं जा रहे, वो कुछ और लेने जा रहे हो, पैसा चाहिए। वचन आपको सब कुछ दिखाएगा, फैसला करना आपका काम है। आज भी उधर जो लोग बैठे हैं मंदबुद्धि हो गए, वो सीखेंगे नहीं ये क्या हो रहा है। कल से वो वीडियो खूब वायरल हो रही है, खूब। हमारा बोलने से कई बार ऐसा होता है, ये तो पास्टर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ऐसे बोलते ही रहते हैं। अपनी आंखों से देखो, हमारी बात पर यकीन मत करो। प्रभु ऐसा भी समय लेके आता है कि तुम्हें दिखाए। हालेलुया। तो आज जिस टीचर से सीखने के लिए जा रहे हैं उसका नाम यीशु है और उसका स्वभाव है। आज पहला सबक देने जा रहा है। उसने अपने चेलों को अपने पास बुलाया, उन्हें बिठाया और मुंह से उपदेश करना शुरू किया, सिखाना शुरू किया। तो पहला पाठ जो उसने पढ़ाया था वो आज पढ़ेंगे, हो सकता है अगले संडे भी यही हो। हालेलुया। पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार 5 चैप्टर 1, 2 और 3 वचन। Book of Matthew chapter 5 verse 1, 2 and 3। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वे अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं क्या हूं? मैं दीन हूं। और आगे क्या बोल रहे? पहला सबक क्या है? पहला सबक है ये, धन्य है वह लोग जो मन के, उनको क्या मिलेगा? हालेलुया। हमारी सबकी शायद ख्वाहिश हो स्वर्ग में जाने की। किसी का दिल नहीं करता मैं नरक में जाऊं, लेकिन नरक में जाने के लिए जो पहला चैप्टर है, पहला पाठ है, वो अपने से यीशु ने शुरू किया। पहले सिखाने वाला क्या है? दीन है। और दूसरा क्या सिखा रहा है वो? धन्य है वह जो नम्र और दीन है, क्योंकि वह स्वर्ग के राज के। सबसे जरूरी था, जब इस तरीके से हमने स्वर्ग में जाना था, तो हमारा सिखाने वाला पहले दीन होता। आज मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना। मेरे को कई लोग बोल देते आप पैसे क्यों नहीं लेते? एक सेवक खुद लालच से भरा हुआ है और विश्वासियों को सिखा रहा है लालच मत करो। हालेलुया। विश्वासी क्या लेने के लिए जा रहे हैं? वो भी एक लालच में जा रहे हैं। उनको भी पैसा चाहिए, करने चाहिए, उनको भी चंगाई चाहिए, यीशु नहीं चाहिए। तो जब विश्वासी वहां जा रहे हैं इस गलती के अंदर, विश्वासियों की कोई गलती नहीं है। जो पहले सामने सेवक बैठा है वो क्या है? वो भी तो एक ही बात बोल रहा है कि बीज बो। और आज मैं बड़े सेवकों की बात नहीं करता, मुझे दुख है कि छोटे छोटे सेवक जिनके पास 10-10, 20-20, 30-30 की कलीसिया है, वो भी बोल रहे बीज बीजो। वहां से सीख लिया। एक ने वचन को उल्टाया
और सब ने उसके पीछे वचन को उल्टा दिया। कारण है कि सब लालच से भरे हुए हैं। ये संगति पैसे इकट्ठे करने के लिए नहीं लगाई जाती। प्रभु यीशु मसीह इस काम के लिए इस संसार में नहीं आए। चंगाई मिल सकती है आपको, उसके लिए यीशु ने जान दी है, लेकिन यीशु ने कहां ऐसा बोला कि मैं आपको पैसा दूंगा। मेरे को एक भाई ने क्वेश्चन किया, आप बहुत से लोग मेरे को सवाल पूछते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी उसमें से सीखता रहता हूं। एक भाई ने मेरे को बोला कि मैं आपकी संगति में गया था, मैंने वहां ज्यादा गरीब लोग देखे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो किस्सा है गरीब लोगों की समझ में क्यों ज्यादा आता है? अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया। कुछ लोग बढ़िया सवाल करते हैं, मुझे खुशी होती है। हमारा टीचर बोल रहा है धनी आदमी स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। हालेलुया। तो फिर कहानी किसकी समझ में आएगी? वो सबसे पहले कंगाल था, वो गरीब था, तो गरीब की कहानी तो गरीब ही समझेगा ना। स्वर्ग का मालिक था, सिर छुपाने के लिए जगह नहीं थी। इससे गरीब और क्या हो सकता है? वो गरीबी की इतनी हद तक गया है कि उससे ज्यादा गरीब नहीं हो सकता हो। हालेलुया। लेकिन था क्या? वो परमेश्वर था। गूंगे की भाषा गूंगा समझ सकता है। हलीम होने के लिए हमें पहले हलीम से मिलना पड़ेगा। लालची होने के लिए लालची के पास जाना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर पैसे का लालच कूट कूट कर भरा हुआ है तो हम वही कलीसिया ढूंढेंगे जहां पास्टर बोलेगा बैंक में पैसा आ रहा है, हाथों पर सोने की डस्ट आ रही है। हालेलुया। ज्यादा लोग जो दुनियावी चीजों का प्रचार कर रहे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम है कि वो परमेश्वर के बारे में खुद भी नहीं जानते। उनको ये पता ही नहीं कि हम किसके लिए प्रचारक बनाए गए हैं, हम यहां क्यों बैठे हैं, हमारा सिखाने का मकसद क्या है। परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं है ऐसे सेवकों को जो पैसे का प्रचार कर रहे हैं। एक सेवक को और एक विश्वासी दोनों को पहले परमेश्वर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और वही सीखने के लिए हम इधर बार बार आते हैं कि परमेश्वर क्या है। कुछ लोग सोचते हैं स्वर्ग जाने के लिए हमें कुछ काम करने होंगे, ज्यादा कलीसियाओं में सिखाया जाता है। और वो काम क्या है? बहुत सा वचन पढ़ना होगा। ज्यादा लोगों को वचन पढ़ने का भी घमंड है। कई लोग बोलते हैं हमने 10 बार बाइबल पढ़ लिया, मैं सारी बाइबल जानता हूं, सारी बाइबल मेरे अंदर लिखी हुई है। बहुत सी बाइबल पढ़नी। और कुछ लोग कहते हैं बहुत से व्रत रखने होंगे। जो बातें बोल रहा हूं जो पुराने लोग हैं समझ रहे हैं कि ऐसा ही चल रहा है। उसके बाद क्या करते? लंबी लंबी प्रार्थना करनी होगी, रात रात भर जागना होगा, घुटने लगाने होंगे। मैं ऐसे सेवकों को जानता हूं रात रात भर प्रार्थना करते लेकिन यीशु मसीह को अभी तक भी नहीं जानते। अभी तक भी उनके अंदर दिमाग में पुराना नियम घूम रहा है, जिसके बारे में लिखा है कि पुराना नियम पढ़ पढ़ के उनकी बुद्धि मोटी हो गई है। कुछ सेवक ऐसा बोलते हैं बहुत दान देना होगा तब आप परमेश्वर के योग्य ठहरेंगे। कुछ सेवक बोलते हैं आपको पाप को छोड़ना होगा। जब विश्वासी बोलते हैं कि हमारे में पाप क्या है बताओ कैसे छोड़ें, फिर उनके पास कोई जवाब भी नहीं होता। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, व्रत रखने, दान देना, पाप को छोड़ना, ये सब होने पर ही आप स्वर्ग जाएंगे। लेकिन जो आज हमारे टीचर ने हमें पहला लेसन दिया वो क्या है? दोबारा पढ़ें उसे, मत्ती 5:3। धन्य है वे हाँ, जो मन के दीन है, हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। हालेलुया। धन्य है वो
जब प्रभु ने बोल दिया धन्य है, तो फिर पीछे क्या रह गया? फिर धन्य स्वर्ग में नहीं जाएगा। जो धन्य होगा वो तो स्वर्ग जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी आसान सी है, मन के दीन है, वो स्वर्ग में जाएंगे। तो जो दीन नहीं है वो क्या है? दीन का अपोजिट क्या होता है? हाँ जी, प्रॉपर उत्तर नहीं आया अभी। हाँ जी, हाँ, सीधा सवाल है। हलीम का उल्ट होता है घुमंडी। जिसमें घमंड है वो हलीम नहीं है। जो हलीम है उसके अंदर घमंड नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई घमंड नहीं था। स्वर्ग का मालिक होने के बावजूद भी उसके अंदर कोई ऐसा घमंड नहीं था कि मैं स्वर्ग से आया। क्यों? क्योंकि वो मन का हलीम था। हमारे अंदर अगर किसी किस्म का भी घमंड पाया जाता है, ये बचपन से शुरू हो जाता है, मौत तक साथ रहता है, तो हम हलीम नहीं है। घर में मेरा राज्य चलता है, मेरी वजह से सारा परिवार खाना खा रहा है, मैं ही सबको चला रहा हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, और उसके बाद धार्मिकता का घमंड भी आता है, मैं बहुत वचन जानता हूं। कई ढेरों सेवक इससे भरे पड़े हैं आत्मिक घमंड से। और ये जो घमंड है सबसे खतरनाक है और सबसे लास्ट पर नाश करने के लिए आता है। जब मैं सब तरफ से ठीक हो जाऊंगा ना, फिर एक घमंड मेरे अंदर और उत्पन्न होगा, धार्मिकता का घमंड। मैं वचन बहुत जानता हूं, मेरी परमेश्वर से सीधी बात है, ये भी एक घमंड है। तो वचन कहता है कि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। क्या हम इधर सामना करने के लिए आए हैं? हम तो दया पाने के लिए आए हैं। तो वचन कहता दया किस पर करता है? जो मन के दीन है उन पर दया करता है, लेकिन जो घमंडी हैं उनका। पढ़े उस वचन को, पहला पत्रस 5:5। First Peter chapter 5 verse 5. इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानियों का क्या करता है? कौन करता है? परमेश्वर का विद्रोह हम झेल लेंगे? परमेश्वर हमारे सामने खड़ा हो जाए, हम रोक लेंगे उसे? अभी छोटा सा घमंड योना के अंदर आया। योना, परमेश्वर उसको बोल रहा है निनवे को जा। वो कहां जा रहा है? इतना सा भी घमंड है ये। अगर वो दीन होता तो क्या करता? परमेश्वर जी, जो तूने बोला है, मैं निनवे को जा रहा हूं, काम हो या ना हो, तूने मुझे बोला है। अभी योना क्या सोच रहा है? तर्शिश में तो निनवे से भी ज्यादा पापी हैं, तर्शिश भी तो नाश होने के लिए जा रहा है, मैं तर्शिश में जाके प्रचार करता हूं। तो यहां क्या लिखा है? घमंडियों का क्या करता? देखो, काम ही करने जा रहा है प्रभु का। वो उसने ना नहीं किया, मना नहीं किया, प्रभु का कार्य करने के लिए जा रहा है, लेकिन थोड़ी सी आपने मर्जी उसमें मिला ली है। इसी तरह आज सेवक कर रहे हैं, काम परमेश्वर का ही कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में क्या है? अपनी मर्जी मिक्स कर रही है, और उनको ये लगता है ठीक है। योना को क्या लग रहा है? ये ठीक है, लेकिन योना को ठीक ही लगता रहता अगर प्रॉब्लम ना आती तो। अभी योना ने टिकट लिया, सो गया, तर्शीश को जा रहे हैं प्रचार करने। रास्ते में क्या हो गया? तूफान आ गया, और तूफान आने की वजह से उनका जहाज रुक गया। अभी मलाह जोर लगा रहे जहाज को निकालने के लिए, जहाज नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? घुमंडियों का अभी योना का सामना करने के लिए खड़ा है। लाख कोशिश के बाद भी जहाज नहीं चल रहा। जब हम घमंडी होंगे ना, हम मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। अभी तो हलीम नहीं हुआ,
जिस दिन हलीम हो जाएंगे ना, सब कुछ हो जाएगा। जो लोगों के काम नहीं हो रहे ना, आज लिख के ले जाओ। ओनली, सिर्फ और सिर्फ हलीम लोग ही स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे, घुमंडी नहीं होंगे। अभी खड़ा है, जहाज खड़ा है, जोर लगाया जा रहा है, चलेगा। कई कई लोगों का जहाज अभी खड़ा है, आप जोर लगा रहे होंगे चले, नहीं चल रहा। आज का लेसन है, यीशु आपको सिखाना चाहते हैं इस वचन के द्वारा, हलीम हो जाओ तब जहाज चलेगा। अभी योना को हलीम करना है। अपने आप हलीम हो जाइए, ठीक है। अगर परमेश्वर हलीम करेगा, गड़बड़ हो जाएगी, करेगा जरूर वो। हाँ, उसका ढंग फिर और है हलीम करने का। अभी योना के ऊपर उसने इस्तेमाल किया 3rd डिग्री। योना को क्या किया गया? जहाज से बाहर निकालकर फेंक दिया गया। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर के कार्य कितने अद्भुत हैं। बड़ा जहाज है, कितने सवार उसमें बैठे हैं, कितना राशन है उसके अंदर। छोटा सा नहीं है जहाज, वो छोटी किश्ती नहीं है, जहाज है। तो जब योना को पानी से फेंका गया बाहर, तो वहां एक मछली खड़ी है। कितनी टाइमिंग है उसकी। अगर मछली 3 गज की दूरी पर होती तो योना का क्या होता? अगर मछली का पेट भरा होता खाना खा खा के, तो योना का क्या होता? आंखों में, मुंह में, नाक में सब गंदगी भर जाती है उसकी। 2 दिन से मछली व्रत रख कर बैठी है, पता नहीं 4 दिन से बैठी है। योना आने वाला है। परमेश्वर ने रेस्ट हाउस बना के रखा उसके लिए पानी के अंदर। योना फेंक दिया गया और मछली के पेट के अंदर चला गया। अभी बैठा, पहले जहाज में सफर कर रहा था, अब कहां कर रहा है? अब परमेश्वर का जहाज आ गया। तो योना लिखता है, कहना मुझे लेकर वो पताल में चला गया, नीचे उतर गई मछली। 3 दिन बीत गए। 3 दिन बीतने के बाद योना को समझ आया, नीनवे जाने को बोला था। ये क्या हो गया? तरशीश को जा रहा हूं मैं। फिर कहता, मैंने पताल के गर्भ से दुहाई दी, हे परमेश्वर मुझे बचा ले। कहता, परमेश्वर ने मेरी दुहाई सुन ली। आप अगर किसी गड़बड़ में फंसे, मैं पिछले हफ्ते कल का दिन मुझे बहुत लोगों के फोन आए, हमारी प्रॉब्लम्स है, अलग अलग प्रॉब्लम। एक बेटी का फोन मुझे आया यूके से। उसने बोला, पास्टर जी बड़ी प्रॉब्लम है, घर में ना बरकत नहीं है, जो पैसा आता है वेस्ट हो जाता है, तो आप उसके लिए कोई उपाय करें या प्रार्थना करें कि हम उसमें से निकल सके। बिना मतलब लॉस हो जाता है। मैंने उसको बोला, बाइबल पढ़ती हो? कहती नहीं। प्रार्थना करती हो? नहीं। तेरे को किसने बोल दिया कि पास्टर की प्रार्थना करने से सब ठीक हो जाएगा? मैं तेरे को बोल रहा हूं, मैं प्रार्थना कर देता हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना से ठीक होने वाला नहीं है। आपको वचन पढ़ना होगा, आपको प्रार्थना करनी होगी। आज का दिन मेरा नोट कर ले, आज से वचन पढ़ना शुरू कर दे, प्रार्थना करनी शुरू कर दे। 2 महीने बाद मुझे फोन करना कि ठीक हो गया या नहीं। मैं आपको बोल रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा। एक बहन का फोन रात को आया नकोदर से, पास्टर जी गठिया बहुत ज्यादा है, मेरा शरीर बहुत दुखता है, मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने उस बहन को बोला, प्रार्थना करते? नहीं। बाइबल पढ़ते? नहीं। क्यों? पहले बहुत प्रार्थना करती थी, बाइबल भी बहुत पढ़ती थी, लेकिन अब नहीं। मैं कहा तो वो छोड़ती गई और बीमारी बढ़ती गई योना की तरह। अब प्रार्थना को और वचन को बढ़ा दे और बीमारी घटने लग जाएगी। मेरी प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला। आपको इस संगति में प्रभु इसीलिए लेके आया, आप उसे जान सकें। ये आपकी एक क्लास है। योना कहता, मैंने पताल के गर्भ से पुकारा, प्रभु मेरे पर दया कर। तो फिर क्या हुआ? जब तौबा किया तो मछली ने बाहर ले आके किनारे पे उसको फेंक दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, तौबा करो और मन फराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है।
अगर आप घुमंडी हैं ना तो आज तौबा कीजिए, आज ही आपके हृदय में परमेश्वर का राज्य शुरू हो जाएगा। हाँ जी बोलिए सिस्टर। हालेलुया। तो आज हम यीशु के पास आएंगे, सबसे पहले उससे सीखेंगे कि वो कैसे हलीम था। हलीम तो था वो, मूसा को उसने चुन लिया। वचन में लिखा मूसा सब लोगों से इस पृथ्वी पर हलीम था। तो हमारा प्रभु भी हलीम है। आज हमें पहले उससे सीखना है। नेक्स्ट वीक हम बनेंगे हलीम, आज पहले उसकी हलीमी देखेंगे जो हमारा टीचर है। सबसे पहले उसका जन्म है, उसका जन्म ही हलीम है, वो पैदा ही हलीमी में हुआ। हालेलुया। एक कुंवारी से जन्म होना, क्या ये अचानक हो गया? उसके बारे में तो यशायाह की पुस्तक में पहले लिख दिया गया, 700 साल पहले कि कुंवारी से जन्मेगा। और उसको लोग औरत की संतान बोलते थे, जो उस समय में एक गाली थी। और आज भी लोग यीशु मसीह के नाम पर गाली देते हैं कि वो औरत से जन्मा था। हालेलुया। उसके पैदा होने का कारण हलीमी था। वो ईश्वर था, जमीन पर हलीम होने के लिए आया था, क्योंकि उसने हमें भी हलीम होने के लिए बताना था। और स्वर्ग में वही लोग होंगे जो हलीम होंगे। घुमंडी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि वचन कहता है अगर आपके अंदर घुमंड की जगह है तो भूल जाइए कि स्वर्ग आपके लिए है। इस जमीन पर जितनी देर वो रहा, ये शब्द उसके साथ जुड़ा रहा कि ये एक कुंवारी से पैदा हुआ। और जो एक इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक इंसान से बर्दाश्त करने वाली बाहर की बात है। अगर आज आपको कोई ऐसे बोलता है ना यीशु के बारे में, आप बर्दाश्त नहीं करते और आपके अंदर सबसे बड़ा दुख होता है, लेकिन आपको सुनना पड़ता है। पता आपको क्यों सुनना पड़ता है? वो यही चाहता है कि आप इसे सुने। मैं कैसा हलीम हूं, वैसा हलीम आप भी बन जाइए। कई लोग झगड़ पड़ते कोई ऐसा बोलता उससे, आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। हमारे प्रभु के बारे ऐसे बोला है। हमारा प्रभु सब कुछ कर सकता था। अगर ये गाली थी तो वह पैदा क्यों हुआ? वो क्या और कोई रास्ता नहीं था पैदा होने के लिए? हालेलुया। और सच्चाई ये है कि ये गाली मैं भी बकता था मसीह में आने से पहले। और वो इतना हलीम है, इतना प्यार करने वाला है, मेरे जैसे एक गंदे इंसान को उसने अपना सेवक बनाया, उससे प्यार किया। उसने ये नहीं देखा कि ये भी मुझे गाली देता था। हालेलुया। क्यों ऐसा किया उसने? वो अति हलीम है, इससे ज्यादा हलीम नहीं हो सकता। आपको एक गाली को देता है, 20 साल आप उसको बुलाते नहीं है। मेरे को गाली दिया था और मैंने 500 गाली दिया होगा यीशु को। आज मेरे बीच में से बोल रहा है और कहता है तो मेरा प्यारा पुत्र है। हालेलुया। गाली तो दूर, एक बात कोई आपको बोल दे वो भी बर्दाश्त नहीं होती। मैं सिखाना चाहता हूं आपको कि अगर आप हलीम नहीं है तो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। अगर यीशु के साथ रहना है तो हलीम होना ही होगा। और वो इंसान के अंदर आके उसके स्वभाव को बदलता हुआ मैंने देखा है। इस संगति में बहुत लोग मैंने देखे हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने जैसा बना दिया। भाई राजेंद्र हैं, ऑनलाइन बैठे हैं, बहुत लड़ाई करने वाले इंसान थे, अभी ऐसे रहते सबके साथ। तो सबको बोलते हैं वो राजेंद्र मर गया जो लड़ाई झगड़ा करता था। अभी किसका कब्जा हो गया? अभी वो हलीम यीशु ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा है, रुक जाइए, आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग, वचन में लिखा है, स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे।
जन्म हलीम और दूसरा जन्म स्थान हलीम, जहां पैदा हुआ वो भी जगह हलीम। कहां पैदा हुआ? चरनी में। कभी कोई सुना है पैदा हुआ? आज तक सुना? कभी आज तक सुना? कभी अखबार में पढ़ा कि कोई बच्चा चरनी में पैदा हो गया? यीशु चरनी में पैदा हुआ, इसीलिए ज्यादा गरीब लोग उसको समझ पाते हैं, क्योंकि वो खुद ही बहुत गरीब है। गौशाला में जहां जानवर रहते हैं वहां पैदा हुआ, और गौशाला के अंदर बहुत बदबू होती है। आज तो बच्चे हाइजेनिक पैदा हो रहे हैं, इसको हाथ मत लगाओ, इसको डाइपर लगाओ, इसको शीशी धो कर दो, उबाल कर दो, सब कुछ हाइजेनिक रखो। क्या गौशाला हाइजेनिक है? जानवरों की बदबू हमेशा गौशाला के अंदर रहती है। कभी जाकर देख लेना, गौशाला बदबू से भरी होती है, वहां जानवरों का गंदमंद भी होता है। गौशाला के अंदर तो पैदा हो गया, लेकिन कोई बेड नहीं है, चरनी है खुरली के अंदर, जानवरों की मानित। ये क्या सिखा रहा है? हाँ, मेरे से सीखो क्योंकि मैं मन का नम्र और दीन हूं। मैं आज उसकी क्वालिटी आपको बताना चाहता हूं, कैसा दीन है वो। आज आपको कितने लोग मसीह में मिलेंगे, ढेरों, जो दीन नहीं है, जो लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपके विरुद्ध बोलेंगे, आपके साथ बेईमानी करेंगे। एक भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु कहता बहुत आएंगे। प्रभु प्रभु कहते, मैं तुझे कहता हूं, मैं उन्हें कह दूंगा कि मैं जानता नहीं हूं। क्यों नहीं जानता? तू हलीम तो है नहीं था, मेरे साथ तेरा क्या रिलेशन था? पहला सबक तो तूने पढ़ा नहीं। आज मैं ABC सिखाने जा रहा हूं आपको मसीहत की। पहला शब्द है, धन्य है वह जो मन के हलीम है। उसके बाद और कुछ सिखाएगा, लेकिन पहला सबक ये है। हालेलुया। लेकिन उसकी एक क्वालिटी देखो कितनी सुंदर है। चरनी के अंदर पैदा हुआ है, और दुनिया के महान ज्ञानी सोना, गंधरस और लबान लेकर उसके पांव पर माथा टेक रहे हैं। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? इस संसार का मुक्तिदाता जन्मा है। यह दिखा रहा है ईश्वर भी है, मनुष्य भी है। ईश्वर चरनी में पैदा हुआ। अगर वो ज्योतिषी, अगर वो तत्वज्ञानी उस चरनी के पास जाकर उसके पांव पर माथा ना टेकते, तो वो ईश्वर नहीं था। उसने सब कुछ कंप्लीट करके दिया है। हमारे में थोड़ी कमी है, हम वचन को सीखते नहीं ध्यान से, हम यीशु के पास जाते नहीं। और मैं तुम्हें सच कहता हूं, ये वचन मैं कभी भी ना बोलता, कभी मेरी समझ में ना आता, अगर प्रभु यीशु मसीह मुझे ना सिखाते। हालेलुया। वचन कहता है उसने अपने आप को शून्य कर दिया। वो पैदा होने के बाद शून्य करता ही चला गया। ये नहीं कि बस पैदा हो गया शून्य में, बस बहुत हो गया, अभी राजा बनने जा रहा है। सलीबी मौत तक अपने आप को और नीचा करता गया। उसके वचन में भी लिखा है, जो मेरा सेवक होना चाहता है वो अपने आप को ऊंचा नहीं बल्कि नीचा 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 करता जाए। आज इसको लिख लो, दुनिया में जितने भी सेवक हैं, ज्यादा सेवक उनमें से अपने आप को ऊंचा 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 करते जाते। मैं एक मिशन में था, उसमें पहले ब्रदर, फिर एल्डर ब्रदर, फिर पास्टर, फिर सेंटर पास्टर, फिर चीफ पास्टर, और उनके बर्तन भी बदलते जाते थे। पहले गिलास, फिर कप, फिर मग, फिर थाली, फिर बड़ी थाली, फिर 2 सब्जी, फिर 3 सब्जी, फिर 4 सब्जी। क्या है? वो शून्य करता चला गया। उस मिशन में मैंने देखा, आज तक लोग तरस रहे, मैंने पास्टर बनना है, मेरे 10 साल निकल गए अभी तक पास्टर बनाया नहीं, मेरे 20 साल निकल गए अभी मुझे बनाया नहीं। किस यीशु की बातें करते हो? जानते भी हो उसे? आज ढेरों सेवक और ढेरों विश्वासी मसीह को जानते नहीं, एक समस्या है। हालेलुया। वचन पढ़े फिलिपियों 2 का 5 से 11।
Philippians दो, chapter 2 5 से 11 verse 5 to 11. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कैसा स्वभाव तुम्हारा हो? यीशु मसीह का कैसा स्वभाव था? जैसा स्वभाव मसीह यीशु का था वैसा तुम्हारा भी हो। पढ़िए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझ। परमेश्वर के समान था वो, लेकिन परमेश्वर की समानता में नहीं रहा वो। हाँ जी पढ़े। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा शून्य किया अपने आप को, और दास का स्वरूप धारण किया। हालेलुया। क्या कर लिया? प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा। कौन सा रूप बनाया है? दास का रूप धारण किया। ऐसा अपने आप को शून्य किया। था कुछ और, दिखा कुछ और रहा था। हम होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। 5-10 हजार रुपया नहीं होता, लोन पे स्कूटर ले आते हैं, लोन पे कार ले आते। चलो स्कूटर तो जरूरी नीड है, इंसान ले आता है, गाड़ी ले आते, कई बार कार ले आते। ऐसी ऐसी चीजें हम लोन पर ले लेते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं है। पड़ोसियों ने ये लिया, हम भी ये लेंगे। एक दास का रूप धारण किया परमेश्वर होते हुए भी। हाँ जी। और मनुष्य की समानता में हो गया। हाँ। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। कहां तक आज्ञाकारी रहा? कहां तक दीन रहा? वो सलीब तक जाते वक्त तक भी ऊंचा नहीं हुआ। हमें पता कब तक हलीम रहना है? जब तक जमीन पर जिंदा है तब तक, 1-2 दिन नहीं। आज सेवक को और विश्वासी दोनों को क्या चाहिए? एक मशहूर बात है दुनिया की, नेम और फेम। एक सेवक को भी यही चाहिए और एक विश्वासी को भी यही चाहिए। मेरे को याद है, एक मेरे मित्र हैं, वो सेवक हैं। मैं उनके चर्च का नाम भी नहीं लूंगा, अगर लूंगा तो आपको पता चल जाएगा कौन है वो। मैं जब जब भी उनको मिला तब तब उन्होंने मेरे को बोला, ये जो चर्च का नाम है ना, वहां लिखा हुआ पर, ये मुझे परमेश्वर ने दिया था। परमेश्वर ने बोला था ये नाम रख लेना। मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने किसी को चर्च बनाने के लिए नहीं बोला, बाइबल में कहीं ऐसा नहीं है। तो फिर नाम कहां बता दिया चर्च का? लेकिन वो हमेशा उनके मन के अंदर पता नहीं कहां फिट हो गया है कि ये नाम मुझे स्वर्ग से मिला है और परमेश्वर ने आप दिया कि ये चर्च का नाम रखो। लेकिन आप भी बहुत परेशानी में है, वो आर्थिक परेशानी में, और विश्वासी भी 5-10 है, उसके पास ज्यादा नहीं है। जब परमेश्वर ने नाम दिया था तो फिर फेम क्यों नहीं दिया? नेम तो दे दिया है? नाम तो तुमने रख लिया, बातें करते हो, फेम होने के लिए तो वो सच चाहिए। लेकिन आजकल बड़ी बिल्डिंग, बड़ा चर्च, बड़ा सेवक, विश्वासियों को भी चाहिए नेम एंड फेम। हमारे पास्टर जी का नाम होना चाहिए। यीशु से बड़ा नाम कोई है? वचन में लिखा है, सब नामों से बड़ा नाम उसे दिया गया जिससे सारे संसार की मुक्ति होगी। आपका वो पास्टर है। आपको कोई बोले ना आपका पास्टर को, ना बोला करो मेरा पास्टर यीशु है। इंद्रपाल नहीं बोलना। कितने लोग बोलते रहते हैं, आओ तुम्हें दिखाऊं पास्टर इंद्रपाल बहुत बढ़िया सिखाते हैं। ऐसा नहीं है, यीशु बहुत बढ़िया सिखाते हैं। जो मेरा टीचर है उसके बारे में बोला करो, मेरे टीचर का नाम ऊंचा किया करो। मेरा नाम मत ऊंचा करो, मैं स्टूडेंट हूं। हालेलुया। एक धार्मिक बिल्डिंग थी, एक चर्च। चेलों ने यीशु को दिखाया। यीशु ने क्या बोला उसके बारे?
हालेलुया। उसके अंदर क्या सिखाया जा रहा था? कोई पाप था? अंदर यीशु के बारे सिखाया जाता था। यीशु मसीह के बारे ही अंदर सिखाते थे। यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ाते थे, यशायाह नबी यीशु के बारे बोल रहा है। मूसा की पुस्तक पढ़ाते थे, मूसा यीशु के बारे बोलता है। वही उस मंदिर के अंदर सिखा रहे थे। लेकिन यीशु ने कोई हैरानी नहीं किया। पढ़े उसको, मत्ती, मैथ्यू 24, 1 और 2। Matthew 24 verse 1 and 2। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। चेले क्या दिखाने के लिए आए? कैसे बनाया गया ये मंदिर, कितना खूबसूरत है। हाँ जी। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा, ये ढाया ना जाएगा। हालेलुया। आज किसी चर्च के ऊपर कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है ना गिराने के लिए, कभी कारपोरेशन का नोटिस आ गया, सब भड़क जाते हैं, परमेश्वर के घर को हाथ लगा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं यहाँ? प्रभु यीशु मसीह खुद ही जेबीसी चला रहे हैं, और वो ईश्वर था, उसके मुंह से जो बात निकलती थी ना, लाजर को उसने बोला ना, लाजर बाहर आ जा, तो मरा हुआ लाजर बाहर आ रहा था। एक छोटी सी बेटी उसको बोला, मरी नहीं सोई है, उठ के बैठ गई वो। किसी अंधे को बोला, देखने लग जा, देखने लग गया। इधर उसने क्या बोल दिया? आशीष नहीं दिया उसको। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ने कहीं श्राप नहीं दिया, लेकिन यहां श्राप दिया। क्या बोला? इसकी ईंट के साथ एक ईंट भी। ये भी देखो कितनी विडंबना है कि एक बिल्डिंग है, प्रभु यीशु मसीह उसके बारे ये नहीं बोल रहे कुछ और बड़ी बात, कोई खास कि गिराई जाएगी, जैसा होगा या वैसा होगा, ज्यादा भविष्यवाणी नहीं किया। सिर्फ एक भविष्यवाणी किया कि ईंट के साथ ईंट। तो जब ईंट के साथ ईंट नहीं रहेगी तो बिल्डिंग का क्या बनेगा? प्रभु यीशु मसीह चले गए, उनके बाद एक राजा आया टाइटस, उसने उसके ऊपर हमला किया। वो सारी सोने की बनी हुई बिल्डिंग थी। आज मैं देखता रहता हूं, बड़े बड़े सुंदर चर्च बनाए पास्टर लोगों ने, बड़े बड़े सुंदर, स्टील लगा के, ये लगा के, अंदर सलीबें लगाई हुई हैं, कितना कुछ किया हुआ है। वो मंदिर से बढ़िया हम मंदिर नहीं बना सकते। उसके ऊपर सोना चढ़ा, दरवाजों के ऊपर भी सोना चढ़ा हुआ था, दरवाजों के ऊपर सब दीवारें, कई दीवारें उसकी सोने से ढकी हुई थी। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? इसकी ईंट के साथ ईंट नहीं रहेगी। वो हलीम है, लेकिन बोल क्या रहा? कहता था मेरे पिता के घर की गैरत मुझे खा जाएगी। उस मंदिर को क्यों उसने तोड़ने की भविष्यवाणी की? खड़े हो जाइए पंकज। अभी थोड़े दिनों बाद उस मंदिर के अंदर एक परमेश्वर की आराधना की जा रही थी, जो पर्दे के पीछे रहता था। थोड़े दिनों तक वो परमेश्वर बाहर आने जा रहा था यीशु की मौत के द्वारा, थोड़े दिनों बाद। और वो परमेश्वर कहां रहने के लिए जा रहा था? तुम्हारा शरीर मेरी पवित्र आत्मा का मंदिर है। अभी नए नए में जाकर एक सिस्टम बदला। वो पवित्र आत्मा जो ऊपर ऊपर मंडलाता था ना, अभी अंदर जाना चाहता है। तो जब ये मंदिर बनेगा तो दो मंदिर पैरेलल खड़े नहीं होंगे। उस मंदिर का गिरना बहुत जरूरी है अगर ये मंदिर बनना है तो। जब तक वो मंदिर खड़ा रहेगा ये मंदिर नहीं बनेगा। आज की कलीसिया में ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम उन मंदिरों को खड़ा कर रहे हैं जिनके बीच में पर्दे के पीछे परमेश्वर रहता था। अभी कितने दिनों से ना मैं स्ट्रगल में हूं, यहां को वर्ष लगाना चाहता था मैं, मेरा दिल इजाजत नहीं दे रहा मुझे, ये कहीं चर्च ना बन जाए। मैं इसको चर्च बनने से रोकना चाहता, लोगों का फेथ इसके ऊपर आने लग जाए। आज
इसी पंजाब में आज लोग चर्च की मिट्टी उठाकर लेकर जा रहे हैं। बैठ जाओ। कहते जी हमारा घर नहीं बनता था, हम चर्च से मिट्टी उठा के लेके आए हैं, अपने घर की नींव में डाली है तो हमारा घर बन गया। हालेलुया। ये सारे का सारा झूठ है। अगर ये मंदिर को तैयार करना था तो उस मंदिर का तोड़ना जरूरी था, और उस मंदिर को तोड़ने के लिए यीशु ने जो बोला ना, इसकी ईंट के साथ ईंट नहीं रहेगी, उसकी ईंट के साथ ईंट नहीं रही। एक ईंट भी ऐसी नहीं रही जो दूसरी ईंट के साथ जुड़ी हुई थी। आप घर को तोड़ लो अपने, जितना मर्जी कोशिश कर लो, ढेरों ईंटें ऐसी होगी जो दूसरी ईंटों के साथ जुड़ी होगी, 4 4 6 6। अगर नेव तक आप तोड़ोगे तो आप सब ईंट को अलग नहीं कर सकते, लेकिन उसकी एक भी ईंट एक दूसरे के साथ नहीं रही। उसका एक कारण था, उसके ऊपर सोना चढ़ा हुआ था। टाइटस ने उसको आग लगा दी। जब आग लगाई, सारा सोना पिघल कर उसकी नींव में आ गया, ईंटों के ऊपर लिपट गया सोना। लोगों ने एक एक ईंट को दूसरी ईंट से अलग कर दिया और उसके ऊपर से सोना उतारा। वो जो मुंह से बोलता था ना, वो हो जाता था। और वो बोल रहा है, धन्य है वह जो मन के दीन है, वही परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये उसके मुंह से बोला हुआ शब्द है। और हमको हलीम करने के लिए इस हद तक उसको जाना पड़ा, इतना दुख उसको सहना पड़ा कि एक उसने हमें रोल मॉडल दिया है। हमारा रोल मॉडल यीशु है। जब तक हमारा रोल मॉडल एक पास्टर रहेगा, हम जिंदगी में कभी नहीं सीख सकते। हालेलुया। आगे आते हैं उसकी एजुकेशन। पहले था जन्म, फिर जन्म स्थान, फिर उसकी पढ़ाई। आज तक दुनिया में कोई ऐसा टीचर नहीं मिला जिसने बोला होगा मैं यीशु को पढ़ाया है। उसकी एजुकेशन शून्य थी, 0, कहीं से नहीं पढ़ा वो, कोई संसारिक डिग्री नहीं ली, लेकिन सारी दुनिया का सबसे बड़ा टीचर। आज भी हम क्या कर रहे हैं? एक वचन उससे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, एक भी हमारी समझ में नहीं आ रहा अच्छी तरह। 1.5 घंटा लगे हैं एक वचन को समझने के लिए। अभी भी शायद कईयों के ऊपर से निकल जाएगा आज भी ये। इतना बड़ा टीचर था, एक एक शब्द 2000 साल हो गए पढ़ते हुए, समझ नहीं आ रहा जो उसने सिखाया था। हालेलुया। इतने, हम जब बच्चा पढ़ाते हैं कौन से स्कूल में डालने की कोशिश करते हैं? कॉन्वेंट स्कूल, कोई अच्छा स्कूल, उसके अंदर बच्चा पढ़े। अभी भी हम घमंड में डूबे हुए हैं। क्यों पढ़े? क्योंकि हमारा ये ऊंचा हो जाए, मेरा बच्चा इंग्लिश बोलता है, मेरा बच्चा बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ा हुआ। लेकिन उसके अंदर क्या है? स्कूल के अंदर क्यों बढ़िया है वो? उसके अंदर क्वालिफाइड टीचर हैं, पढ़े लिखे टीचर हैं। तो उन टीचरों का टीचर के पास कभी बच्चे को दाखिल करवाना चाहते हैं आप? कारण है हमारा घमंड। हमें दुनियावी घमंड चाहिए। कोरोना में अच्छी तरह सिखाया प्रभु ने कि पढ़ाई क्या होती है। हालेलुया। फिर भी समझ नहीं आया, फिर भी नहीं समझ आया। कोरोना से पहले मैंने बोल दिया था कि इस पढ़ाई को छोड़ दो, अच्छी नहीं है, आपके बच्चों को नाश कर देगी। कोरोना तब नहीं आया था। अभी कई लोग मेरे से बात करते रहते, पास्टर जी आपने कैसे बोल दिया था 2 महीने पहले कि ये पढ़ाई खत्म होने वाली है, 0 है। मैंने नहीं बोला था, वो बुलाता है। मैंने पिछले दिनों देखा, वो खत्म हो गया, कोरोना चला गया। 2 साल हमने बच्चे पढ़ने के लिए नहीं भेजे, फिर वही स्पीड शुरू हो गई। मैंने देखा माँ बाप आ गए वही स्पीड पे, बच्चे भी आ गए। 2-3 महीने लगे लेकिन आ गए स्पीड पे। लेकिन फिर उसने स्पीड खत्म कर दिया। बैठ जाओ। पता क्या है? आपको अलग करना चाहता है वो। दुनिया के बच्चों के पास सीखने के लिए कुछ नहीं है। आपके बच्चों के पास एक बहुत बढ़िया टीचर है, यीशु। क्या 2 साल से आपने बच्चों को, हम देखो कितना टेंशन लेते हैं आपके बच्चों के लिए, उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन संगति चलाते हैं, शुक्रवार को देवेंद्र की ड्यूटी है, बच्चों को सिखा रहे हैं।
आप कहां खड़े हैं? ज्यादातर मसीह परिवार के बच्चे यीशु से दूर हैं, ये एक बड़ी समस्या है। मेरे को याद है जब हम मसीह में आए थे, मेरा परिवार, मेरी फैमिली, जब हम मसीह में आए, हमारे से पहले बहुत बच्चे वहां पढ़ रहे थे, संडे स्कूल लगता था। तो जिस साल हमने एंटर किया, उस साल जितने भी टेस्ट हुए, सारे टेस्ट में मेरे बच्चे अव्वल थे। और जितने गिफ्ट दिए, किसी के पास एक गिफ्ट था, किसी के पास आधा, मेरे बच्चों से उठाए नहीं जा रहे थे। 10-10, 15-15 गिफ्ट इनके पास। बोलते थे सारा चर्च यही लूट के ले गए। कारण था, हम नए नए मसीह में आए थे, हम भूखे थे, हम अपने बच्चों पर जोर दे रहे थे कि ये पढ़ जाएं। मेरे बच्चे ज्यादा नहीं पढ़े, 12-12 ही पढ़े हैं, लेकिन हमने उस टाइम इनका ज्यादा जोर जो है वो आत्मिक पढ़ाई के ऊपर लगाया। अभी तक इसीलिए आप इनको हमारे साथ बैठा हुआ देखते हैं। अब इनकी ड्यूटी है, इन्होंने अपने बच्चे कैसे बनाने हैं। हालेलुया। हमारी ड्यूटी तो खत्म हो गई। मेरे बच्चे तीनों इस सिस्टम को अच्छी तरह समझते हैं और परमेश्वर के लगभग डर में ही रहते हैं। लेकिन जो इनकी अगली जनरेशन है वो इनको संभालनी होगी। अभी ज्यादा काम खतरनाक है। जब हम आए थे तब बात और थी, हम मसीह में भूखे थे। अभी बात और हो गई, अभी देर हो गई हमें मसीह में आए हुए। इस कोरोना पीरियड में एक बहुत बड़ी आशीष थी, हमारे बच्चों को ब्रेक कर दिया गया पढ़ाई से कि वो आत्मिक पढ़ाई में आगे आए। क्योंकि कल को जो परमेश्वर का इंतजाम है उसको यही बच्चे आगे लेके जाएंगे। तो अगर इन बच्चों ने आगे लेके जाना है तो जरूरी है कि इनकी दुनियावी पढ़ाई जो हो रही है उसमें ब्रेक किया जाए इसे। हालेलुया। और मेरा परमेश्वर इतना महान है कि इतने दुनिया में देखने से छोटा सा कार्य लगता है, एक छोटे से कार्य के लिए मेरे बच्चों को, हमारे बच्चों को सिखाने के लिए उसने सारी दुनिया का सिस्टम ब्रेक कर दिया। हालेलुया। क्योंकि उसकी नजर में हम बहुमूल्य हैं। अगर हम अब भी ना समझे ना तो सुन लो, वो दीनों पर दया करता है और घुमंडियों का सामना करता है। हालेलुया। मैं कहता था कि इनको मत पढ़ाओ, कोई नौकरी इनको मिलने वाली नहीं है। अभी भूल जाओ कि इनको नौकरी मिलेगी। हालेलुया। मेरा ख्याल है, मेरा दिल कहता है, मैं पक्का नहीं कहता, हो सकता है इन बच्चों को आने वाले टाइम में एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि इनको कोई नौकरी नहीं देनी, क्योंकि कोरोना पीरियड में पास हुए थे, ये पढ़े पढ़े नहीं है। आपकी जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी ना नौकरी की, उसको भी भूल जाइए। हालेलुया। ऐसा होगा। लेकिन परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। अगर आप परमेश्वर से डरते नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। अगर हम परमेश्वर से डरते नहीं है, हम हलीम नहीं हो पाएंगे। अगर हम परमेश्वर से डरते नहीं, हम सीख भी नहीं पाएंगे। लेकिन संत पौलुस जो बहुत पढ़े लिखे थे, जिन्होंने बाइबल लिखी है, वो कहते मेरे पास बहुत सा संसारिक ज्ञान था, मैं पढ़ा लिखा हूं, और मेरे पास बहुत सा आत्मिक ज्ञान भी था। आत्मिक पढ़ाई भी उनके पास बहुत मजबूत थी, क्योंकि गमलीएल नबी से सीखे थे। और संसारिक पढ़ाई भी बहुत थी, क्योंकि एक उच्च दर्जे के अफसर थे वो। लेकिन वो कहते जब मैं मसीह के पास आया ना, तो सब कुछ कूड़ा था, बेकार था। जब आप मसीह के पास आएंगे, आपका पिछला जीवन सारा कूड़ा हो जाएगा। इसीलिए ज्यादा लोग मसीह के पास नहीं आना चाहते, कि वो कूड़े को पकड़े रखना चाहते हैं। वो उनको ऐसा पौलुस की तरह लगने नहीं लगता कि ये कूड़ा है। ये कूड़ा तब लगेगा जब हम अपने जीवन को हलीम करना शुरू करेंगे। फिर दुनिया का फैशन, दुनिया की उन्नति, दुनियावी बातें, ये सब क्या हो जाएगा? कूड़ा हो जाएगा। और कहता इसलिए मैंने कूड़ा किया है, किसी न किसी तरह मैं मसीह को पालूं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसका नाम शाऊल से बदलकर पौलुस रख दिया। आज भी दुनिया में शाऊल को कोई नहीं जानता, जो ज्यादा पढ़ा लिखा था, जिसके पास आत्मिक पढ़ाई थी, जिसके पास संसारिक पढ़ाई थी। आज लोग किसे जानते हैं?
इसीलिए परमेश्वर ने उसका नाम बदला कि वो सिस्टम इसके साथ जुड़ा ना रहे, शाऊल को जानने वाले लोग पीछे रह जाएं, एक नया मनुष्य बनाकर उसने खड़ा किया जिसका नाम पौलुस है। हालेलुया। मैं आत्मिक घुमंड नहीं करता, मैं उस अपने प्रभु से डरता हूं। मैं कभी कभी जब अपने नाम की ओर देखता हूं, मेरे खानदान में से किसी का नाम पॉल से नहीं है। मेरे पूरे खानदान में मैंने लिस्ट देखा, किसी का नाम पॉल से है नहीं है। किसी के पीछे सिंह है, किसी के पीछे कुमार है, किसी के पीछे लाल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो कहता है मैं तेरी एक मां के पेट से तुझे जानता था, मेरे ही नाम के पीछे पॉल है। और 50 साल के बाद मुझे समझ आया कि मेरे नाम के पीछे पॉल क्यों था। आज हम जब मसीह में नाम रखते हैं तो अपने नाम के पीछे पॉल लगाते हैं कि हम पॉल की शिक्षा के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। तो मैं जब जब कहीं किसी अच्छी जगह पर गया, सीएमसी में अच्छे अच्छे डॉक्टरों से मेरी बात हुई, जब मैंने उनको सेवकाई के बारे में बताया, सिर्फ 4 बातें सुनकर जो समझदार लोग समझ, अच्छा आप पॉल के शिष्य हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं। उनको पता चल जाता है ये जो पढ़ाई बोल रहा है ये पौलुस की है। हालेलुया। तो जिसका नाम उसने शाऊल से बदलकर पौल रखा था, वो मेरा उसने बचपन से ही रखा है। हालेलुया। इसीलिए शायद उसने मुझे एक गैरत भी दी है बोलने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं उस परमेश्वर का। मेरे पास अभी बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समझ ज्यादा है। इसको रेगुलर रखेंगे, जो बाकी बचा है अगले संडे को आपको सुनाएंगे। लेकिन अभी तो मैंने क्वालिटी बताई आपको मसीह की कि वो हलीम था, और अगले संडे हम देखेंगे कि वो हमसे क्या चाहता है और हमें हलीम कैसे बनना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। सब अपनी आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना की ओर जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवत परमेश्वर, हमारे सामर्थी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के समय के लिए, आज की संगति के लिए। प्रभु जी, आपने बोला था कि तुम मुझसे सीखो क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर हूं और मैं मन का दीन और नम्र हूं। प्रभु जी, आप हमें भी अपने समान बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपने बोला धन्य है वो लोग जो मन के दीन हैं, वही स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। कोई भी इंसान तेरी सहायता के बिना, तेरे वचन के बिना अपने आप को दीन नहीं कर सकता। प्रभु जी, प्रभु तेरी दया हो, तेरा अनुग्रह मिले, तब इंसान प्रभु तेरी बातों को समझ सकता है और अपने आप को तेरे स्वर्गीय राज्य के लायक बना सकता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। प्रभु हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, बल्कि इन वचनों पर चलने वाले हो जाएं। प्रभु हम तेरे समान अपने आप को शून्य कर सकें। प्रभु जी, ताकि हम तेरे साथ चलते चलते प्रभु तेरे स्वर्गीय राज में प्रवेश कर सकें। प्रभु इन सब बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु जी, इस संगति में आज जितने लोग आए हैं प्रभु, वो सब तेरी दया को हासिल करने के लिए आए हैं, तुझसे सीखने के लिए आए हैं प्रभु, तेरे वचन से सीखने के लिए आए हैं प्रभु, और आपने इस काम के लिए मुझे इस्तेमाल किया है। प्रभु यीशु, मैं आपका शुक्र करता हूँ। प्रभु जी, जितने बीमार आए हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन कहता है वो अपने वचन को भेज कर लोगों को चंगा करता है। प्रभु जी, आपने अपने सिर पर कोड़े खाए, तेरे मार खाने से हम चंगे हुए। प्रभु यीशु, दया करना, उन तेरे खाए हुए कोड़ों की मार के द्वारा आज जितने बीमार यहाँ बैठे हैं सब चंगे हो जाएं। जितने बोझ के नीचे दबे हुए लोग आए हैं प्रभु जी, डिप्रेशन में हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज तेरे वचनों के द्वारा उनका डिप्रेशन हमेशा के लिए जाता रहे। प्रभु जी, आजाद हो जाएं। जितने लोग गरीबी में हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके हाथों के कामों में आशीष देना प्रभु यीशु, बीमारों को तंदुरुस्ती देना प्रभु। जो लोग तेरे से दूर है प्रभु, आत्मिक जीवन में तेरे को ज्यादा नहीं जानते, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप अपने स्वर्गीय भेदों को उनके ऊपर प्रकट करना, ताकि और भी आपके बच्चे आपके नजदीक आ सकें प्रभु जी। और हम कभी भी प्रभु ऐसा जीवन नहीं बिता सकते जैसा आपने बताया, अगर आपकी दया ना हो तो प्रभु। इसलिए हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर हो, तेरी दया हो, और हम प्रभु तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार कर सकें प्रभु जी।
आज का वचन सबकी जिंदगियों के लिए एक आशीष का कारण बने प्रभु जी। सब आज यहां से खाली ना जाएं, बल्कि प्रभु तेरी आशीष को साथ लेके जाएं। जिस तरह यहां पहुंचे हैं, वापस इनके घर जाने तक प्रभु इनकी सहायता करना। तेरी दया में सबको सौंपते हैं प्रभु, तेरे पुत्र हाथों में देते हैं प्रभु। आने वाले दिनों में हम भी और ज्यादा तेरे वचनों से सीख सकें, तेरे वचनों के मुताबिक अपने आप को तैयार कर सकें प्रभु। आप हम सब पर दया करना प्रभु जी। आज की संगति सबके जीवन के लिए एक आशीष का कारण बन जाए प्रभु। और जितने लोगों ने ऑनलाइन बैठकर आज की संगति को सुना, उन सब के लिए प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जी वो भी आशीष पाएं, बीमार चंगे हो जाएं, दुष्ट आत्मा के जकड़े आजाद हो जाएं प्रभु। तेरे वचनों को और ज्यादा सीख सकें और अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार तैयार कर सकें प्रभु। आप सबके ऊपर दया कीजिए। आज तक की आपकी की हुई सभी भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाला समय आपके पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह, आपकी दया आपके सब लोगों के ऊपर बनी रहे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर मानते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की।